these are the topics. आज पढ़ेंगे हम लोग. एक है सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर नैनोवायर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर नैनोवायर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, CMOS. CMOS का नाम सुना है पहले? What is a CMOS? CMOS stands for complementary metal oxide सेमीकंडक्टर. जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं उसमें से सबसे ज़्यादा CMOS बेस्ड डिवाइसेस यूज होते हैं. इसकी खासियत है कि देयर आर बोथ P टाइप एंड N टाइप are used to make them. It is a combination of a system where you use both P type and N type. Okay. So we will discuss these and then we will discuss about what is a SET, single electron transistor inverter. That means inverter say hai, if you are giving the input voltage, you are not getting the output voltage. Out is equal to 0 or the opposite thing. If you are not giving an output voltage, you are getting it. It inverts the voltage supply. Okay. So let us first start with this field effect transistor made out of semiconductor nanowire. So let us go to the basics. एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या क्या होता है? कंपोनेंट्स क्या है एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? द बेसिक कंपोनेंट्स. हाँ, सोर्स, उसके बाद D stands for हाँ, destination. सोर्स है, destination नहीं है. This is drain. ठीक है, this is drain, this is the source. और G stands for ठीक है. So basically what we are trying to do here, हम लोग सोर्स और ड्रेन के बीच IST, this is the current flow है ना. So इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सोर्स ड्रेन करंट वर्सेस सोर्स ड्रेन वोल्टेज का होता है. IST here versus VST. और what does this gate, यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर है. So based upon the gate, you can control the current based upon the field produced by it. This is the basic structure. तो basic structure से कैसा होता है? You have a metal base. यहाँ पे एक semiconductor channel होता है. So there are two types of field effect transistors. कौन से हैं पता है? I think I have discussed this one. Field effect transistors दो तरह के होते हैं. एक है insulated gate FET और इसको बोलते हैं MOSFET, metal oxide semiconductor FET. This is one type. और दूसरा और एक टाइप क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET. So this is more into insulated gate metal oxide semiconductor. तो इसमें क्या होता है? There is a channel और यहाँ पे हम लोग we have the source, we have the drain और यहाँ पे there is one oxide layer क्योंकि ऐसा ही होता है. This is how the system looks like and this is supposed to be the, ये source हो गया, ये drain हो गया और ये हो गया तुम्हारा gate. ठीक है.
Now the same thing can be made with the help of a semiconductor nanowire. nanowire एक नैनो डिवाइस है जिसमें की डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट कितना है? How many types of nanomaterials can you think of when you talk about the degree of confinement? Bulk से start करें तो you start from the bulk. इसमें this is not a nanomaterial, no confinement before bulk. इसके बाद next क्या था? This is 3D. Next is film. एक हम लोगों ने डायमेंशन कर दिया, right? So we have reduced the dimension in the z-axis. X and y-axis still are existing. उसके बाद किसी एक डायरेक्शन में हम लोगों ने उसको कर दिया. This becomes a wire, okay? और उसके बाद इसको भी हम लोगों ने छोटा कर दिया. So this becomes a dot. So the degree of confinement is how much here? In where? In the where? The degree of confinement is 2. Degree of confinement is 2, and degree of freedom is how much? Degree of freedom is 1. ठीक. So यहाँ पे basically the जैसे हम लोगों ने last class में when we were discussing density functional theory, हम लोगों ने देखा था कि density of electron is the most fundamental parameter. ठीक है. तो उसी तरह से यहाँ पे the density of states, DOS, is what defines the different types of quantum structures. तो यहाँ पे DOS is e to the power half. E square is equal to यहाँ पे it is a constant. यहाँ पे ये e to the power minus half, and यहाँ पे डेल्टा. ये है डेंसिटी ऑफ स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ. डेंसिटी ऑफ स्पेस. डेंसिटी ऑफ स्पेस मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी, जो GE बोल के, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. तो ओके, सो लेट्स कम टू द नैनोवायर्स. तो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर नैनोवायर है. ठीक है, इसको ध्यान से सुनो. सेमीकंडक्टर, यू नो व्हाट इज द सेमीकंडक्टर इज? ठीक है, इसका एक बैंड गैप होता है ना. अगर ये मेटालिक नैनोवायर होता है क्योंकि would it be safe, effective, और मेटालिक क्वांटम डॉट मेटल और सेमीकंडक्टर में जब हम कॉन्फाइनमेंट कर रहे हैं तो किस में करना आसान होता है? मेटल में किस में करना? क्यों? what actually defines the, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था मेटालिक क्वांटम डॉट, राइट, और मेटालिक और सेमीकंडक्टिंग क्वांटम डॉट. इसका एक स्टेप ऊपर हो गया, मतलब नीचे हो गया क्वांटम डॉट. नैनोवायर के एक स्टेप नीचे हो गया क्वांटम डॉट. यहाँ पे डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट कितना है? 2 है. यहाँ पे डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट कितना है? How much is the degree of confinement in the case of quantum dot? 3, right? Degree of freedom. दोनों के केस में भी सेम है. So तो मेटालिक क्वांटम डॉट और सेमीकंडक्टिंग क्वांटम डॉट या नैनोवायर, मेटालिक सिस्टम या नैनोवायर सिस्टम में जो
फर्मी एनर्जी है वो क्या सेम है इन द केस ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर. फर्मी एनर्जी इन द केस ऑफ मेटल इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो. मतलब ये दिस इज द फर्मी एनर्जी और इसके ऊपर दिस इज द वैक्यूम लेवल गैप. यहाँ पर इट्स फुल्ली फिल्ड, ठीक है ना. लेकिन सेमीकंडक्टर में तो ऐसा नहीं. सेमीकंडक्टर में देयर इज कंडक्शन बैंड, देयर इज नॉट दिस बैंड. और इनके बीच एक ये ना क्या हो गया. तो इसमें अगर हम डोपिंग करते हैं, इफ यू डोप द सेमीकंडक्टर, मान लो पी टाइप, कैसे डोप करेंगे पी टाइप? हाउ कैन वी मेक एक सेमीकंडक्टर का नाम बोलो जो सबसे कॉमन है. सिलिकॉन. इसको मुझको पी टाइप बनाना है. हाउ विल आई डू इट? हाँ, मतलब आई नीड टू डू सम प्रोसेस बाय व्हिच आई कैन मेक इट पी टाइप. व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड? पी टाइप मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है? दैट इज मोर नंबर ऑफ होल्स, है ना. पी फॉर पॉजिटिव. तो मैं अगर सिलिकॉन को पी टाइप बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा? डोपिंग से बनाऊँगा. ग्रुप 3 डोपिंग कर सकता हूँ या ग्रुप 5 डोपिंग कर सकता हूँ. कौन से ग्रुप में है? ये जो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये जो ग्रुप है सेमीकंडक्टर का ग्रुप जो है ना, ग्रुप 4 जिसको हम बोलते हैं. ग्रुप 4 तो ये जो एलिमेंट्स है ना यहाँ तक, बेसिकली दे आर मेटलॉइड्स, neither metal or non-metal. तो बेसिकली इनकी वैलेंसी है 4, 1 2 3 4. ठीक है, मुझको इसको पी टाइप करना है. पी टाइप मतलब आई नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स. सो मैं ऐसे एलिमेंट से डोप करूँगा जिससे कि पी टाइप बने. तो कैसे डोप करूँगा? ये ग्रुप 3 से डोप करूँगा. ग्रुप 3 में कौन कौन है? तो मैं इसे डोप करूँगा. इसे डोप करने से क्या होगा? दे आर हैविंग वैलेंसी कितनी है ग्रुप 3 की? 3 वैलेंसी है. सो मान लो कोई ग्रुप 3 यहाँ पे आ गया तो उसका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इससे होगा, इससे होगा, इससे. सो वन बॉन्ड विल बी केप्ट ओपन. मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए था वो नहीं. एक स्पेस है ना, दिस इज वॉइड. दिस इज व्हाट इज द होल इज. तो मैं अगर इस ग्रुप 3 से मैं अगर डोप करता हूँ तो मेरा होल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट व्हाट विल मेक इट अ पी टाइप. और जैसे मैं अगर ग्रुप 5 से डोप करूँ, ग्रुप 5 में कौन कौन है? ये सब बेसिक चीज तुम लोग को जानना है. ये भी मेटलर्जी का बेसिक्स में आ गया. ग्रुप 5 कौन कौन है? नाइट्रोजन के अलग तो गैस हो गया. आर्सेनिक है. ठीक है. तो ग्रुप 5 से अगर मैं डोप करता हूँ तो क्या होगा? सो वी हैव सिलिकॉन हियर, द सेम थिंग 1 2 3 4 एंड आई एम डोपिंग इट विद ग्रुप 5. ग्रुप 5 में 4 बॉन्ड्स मेरे ऑब्जर्व हुए. लेकिन ग्रुप 5 का जो एक इलेक्ट्रॉन है के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाया, so that will make an excess of electrons. This is the excess electron due to the doping. तो ऐसे this is how make it n type, p type, n type.
ओके, ये तो इन टर्म्स ऑफ डोपिंग हो गया ना. व्हाट हैपेंस टू द फर्मी लेवल अगर मैं पी टाइप करता हूँ. ऐसे ये पता ना कि इट इज इन बिटवीन, फर्मी लेवल इज इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. तो मैं अगर पी टाइप डोप करता हूँ, सो व्हाट हैपेंस इज दैट मेरा जो फर्मी लेवल सिंस नंबर ऑफ होल्स मेरा बढ़ गया है, सो पी टाइप ये जो फर्मी लेवल है इट मूव्स क्लोज टू द वैलेंस बैंड, है ना. और अगर एन टाइप करता हूँ, then my further level goes close to the conduction band. So I will call it as EFN into excess number of holes, और इसको मैं बोलता हूँ EFP, EFP. ठीक है, क्लियर है. अभी मैं मेटल और सेमीकंडक्टर को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ये एक मेटल, दिस इज मेटल एंड दिस इज अ सेमीकंडक्टर. तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो क्या होगा, फर्मी लेवल बेंड होता है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बेंडिंग, बैंड बेंडिंग. सो अगर बैलेंस बैंड है, मैं अगर पी टाइप से डोप करता हूँ मेटल को, ऐसे हो जाएगा वो बैलेंस बैंड का फॉर्मूला. नहीं, अगर एन टाइप से करता हूँ तो ऐसे होगा, और अगर पी टाइप से करता हूँ तो ऐसे. सर पी टाइप में 3 डोपिंग हो रहा है इसका मतलब. हाँ, पी टाइप में 3 डोपिंग हो रहा है. 3 डोपिंग, पी टाइप पे 3 डोपिंग हो रहा है या 5 डोपिंग. पी टाइप पे 3, पी टाइप पे 3 होल्स, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करने हैं ना. सो ठीक है, सो दिस विल बी फॉर द एन टाइप बैंड बेंडिंग इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा बिकॉज ये, और दिस विल बी फॉर द पी टाइप. तो यहीं पर व्हेन आई एम जॉइनिंग अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर, दो तरह के जंक्शंस तैयार होते हैं. एक है शॉर्टकी जंक्शन, दूसरा है ओमिक जंक्शन, है ना. शॉर्टकी ये हुआ है क्लास में, शॉर्टकी एंड ओमिक. इफ अगर मेरा डोपिंग लेवल कम है, राइट, तो विल क्रिएट अ शॉर्टकी जंक्शन. अगर मेरा डोपिंग लेवल ज़्यादा है तो इट विल क्रिएट एन ओमिक जंक्शन. तो शॉर्टकी जंक्शन में देयर इज अ शॉर्टकी बैरियर, right, because there is an energy gap that the charge carrier needs to travel. अगर वो मेटल से सेमीकंडक्टर में जा रहा है या सिस्टम में मूव कर रहा है, तो there is a Schottky barrier. उसको करना होगा, ठीक है. लेकिन सिंस ओमिक में मेरा ऑलरेडी आई हैव more number of charge carriers, so ओमिक में होता है उसका डिफिकल्टी होता है मूवमेंट ऑफ चार्जेस, easy to move, so there is no, so this actually causes a deflation. Okay, so this is the basic idea. I will come to that. So आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, that is सेमीकंडक्टर क्वांटम सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट. तो मान लो तो सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो ये जो मॉसफेट में मॉसफेट का डिजाइन कैसा है, यू हैव अ सेमीकंडक्टर और यहाँ पे सोर्स इज अ ड्रेन और यहाँ पे there is formation of an oxide. ऑक्साइड फॉर्मेशन जो कि ऐसा ही होता है. इसी को आई एम रिप्लेसिंग
I would like to replace this oxide by a nanowire.